It's so good to see so many familiar faces here. It's so exciting. थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल बता जोरથી बोलજો, सब लोग जोर से बोलिए जय श्री कृष्णा। थैंक यू चंद्रा जी, जिन्होंने कहा कि पंडित जी आप आशीर्वाद दीजिए और करीबन 1 आवर एंड 1.5 आवर तक आप मंत्रोच्चार के द्वारा हम सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। तो कहने का अर्थ यह है, आज चंद्रा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कृष्ण लीला वो सनातन धर्म का सत्य है। सबसे पहले 1 मिनट में आपके लूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा। संस्कृत में कृष्णा को कहा जाता है कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण, जो हमारे मन को, हमारे शरीर को खींच लेता है अपनी तरफ, उस परम तत्व को कहते हैं कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो आज यहां प्रस्तुत होती है। मगर उससे भी खुशी की बात यह है कि 7 समुद्र पार अमेरिका के अंदर चंद्रा जी और उनकी पूरी टीम ने काफी समय से मेहनत करके एक सनातन धर्म का मुख दिखाने का प्रयत्न किया है। तो उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भी हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, और जो भी यहां स्टेज के ऊपर आके परफॉर्मेंस करेंगे उन सबके हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, यही मेरे भगवान के चरणों में प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। Thank you so much, Brijesh ji. Appreciate your blessings. Now this is the hardest part for me, but I have to thank everyone, so I got to do this one. Jai Shri Krishna. I thank you all for being here today. When I began planning Shri Krishna Leela, it was just a small thought to bring our Las Vegas community together through drama, dance, and devotion. Today, seeing all of you gathered here, my heart is full of gratitude. This event does not belong to just one person. It belongs to all of us. Every performer, every volunteer, every supporter has contributed with love and dedication. Our artists have given their time selflessly without any fees, simply out of devotion and passion for our culture. Many of us came to this country years ago carrying our traditions in our hearts. Through this Krishna Leela, we are keeping those traditions alive and passing them to our children and grandchildren. That is the true purpose of this effort. I must thank very few important people who supported me throughout this journey. Jyoti and Ramesh Pisipati have been with me from the day one, helping not only with props and opening their home for practices, but also guiding and supporting us every decision we made for this event. Pavanji and Rosie Agarwal supported us generously by following us to their pickleball court for practices more than 50 people. A special thank to Santrupti for choreographing for our grand finale dance so wonderfully, and Pratik Dudia for finale lightings. I want to thank Rekha Subramaniam and Leena Kocher for managing the stage lights and all the volunteers who worked tirelessly behind the scenes. A heartfelt thank you to our videographer, Vic Chauhan, and Neeraj Jain and Dileshi Dave, who will be capturing our beautiful moments through photography. I would also like to express my sincere gratitude to all our sponsors. Your generous support made this event possible.
and we truly appreciate your trust and encouragement. All funds received from the ticket sales, after covering all the expenses, will be put to good use. Every single penny from this show will be thoughtfully and responsibly used for the good cause. Thank you. And from my heart, I want to thank my husband, Mahendra Mehta. Your constant support, patience, and encouragement gave me the strength to bring this vision to life. If there is any shortcoming, please forgive us. Whatever we have done with the pure intentions. Let us continue to support each other and celebrate our culture together. And as long as even one child in this community remembers Krishna's name because of today, our effort will have been successful. From the bottom of my heart, thank you all for your love, your encouragement, and your blessings. Now sit back, relax, and enjoy the show. And let's give a big round of applause for all our artists. Thank you. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। मैं भी कितनी अभागन हूँ कि माँ बनने की खुशी भी प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा आने वाला बालक अपने भाग्य में जन्म से ही मृत्यु लिखवा कर लाया है। और इस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 दीपक बुझा दिए, किंतु 7वें गर्भ को संकर्षण द्वारा ले जाने वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी आ गई। कंस आश्चर्यचकित था कि देवकी का 7वां गर्भ कहाँ गया। वो नहीं जानता था कि इस 7वें गर्भ से ही रोहिणी ने महावीर शेषावतार बलराम को जन्म दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊद के नाम से विख्यात हुए। अब वो समय आ गया था जब देवकी वसुदेव की पीड़ा का अंत होना था। यह बालक मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है। इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ आओ।
कैसे? आपको तो बेड़ी पड़ी हुई है।
विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ये बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। स्वागत है। आसन पर विराजिए। धन्यवाद। ब्राह्मण पत्नी हूँ, इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। ये तो कोई अद्भुत चीज दिखाई पड़ता है, जैसे देवलोक से आया हो। यशोदा रानी, मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी गाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ। तपस्या के फलस्वरूप इस समय हमारे और हमारी सृष्टि के उस विराट स्वरूप के दर्शन तुम्हें हुए हैं जो आज तक किसी मानव को दृष्टिगोचर नहीं हुए। तुम पर अनन्य कृपा करके
हमने तुम्हें अपने उस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। ये दर्शन केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। यही सच्चा ज्ञान है कि हम ज्ञान की सीमा से परे हैं। मिलेगा, क्योंकि तुमने बसंती के घर चोरी की है। पहले बात पकड़कर क्षमा मांगो और फिर वचन दो कि कभी चोरी नहीं करोगे, तभी माखन मिलेगा। हाँ, चाहे जैसा तुम बनाओ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पहले कान पकड़ो, क्षमा मांगो, फिर मिलेगा माखन। अरे इतना जहन हो गया है, ठहर जरा, आज दिखाती हूँ तुझे। ठहर जाओ।
कहेगा, अरे कहाँ तक भागेगा? हाँ? कब तक भागेगा? हाँ? ठहर जरा। आज तुझे मजा न चखाया तो मेरा नाम यशोदा थी। इधर आ। सारा दिन इस ओखली से बांध कर रहूंगी तुझे। धूप में सड़ता रहेगा तू यहाँ। देखते तू कैसे सब कुछ करता है। हंसता है? हे प्रभु, हे दीनदयाल, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया है। हे जगदीश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हम दोनों देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। नंद कुबेर और मणिग्रीव हमारे नाम हैं। महर्षि नारद का वो श्राप रूपी वरदान आज पूर्ण हुआ। हे प्रभु, आज आपके दर्शन मात्र से हमारी तपस्या सफल हुई। हे कुबेर पुत्र, अब तुम लोग मेरे परायण होकर अपने लोक को जाओ। तुम संसार चक्र से छुड़ाने वाली मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त हो गई है। देखो कृष्णा, मुझे कोई खेल नहीं देता। मैं दूंगा, परंतु उसे रोक लेना। हाँ, अवश्य रोक लूंगा। मैं कहता था ना कि मनसूखा को मत दो, ये नहीं रोक सकता। पर वहां से गेंद लाएगा कौन? भेजो मनसूखा को। नहीं नहीं, मनसूखा को क्यों? वो बेचारा डूब जाएगा। तो फिर तू ही लेके आ। हाँ, तू ही लेके आ। तू नहीं फेंकी थी, तू ही लेके आ। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ।
माँ, मैं तुम्हारे शरण में आया। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्तु। जाओ सरपराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, परंतु एक शर्त पर कि तुम यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमणक द्वीप पर चले जाओ, जो महान सर्पों के रहने का एक स्थान है। तैयारी है। सब गोप गोपियां नए नए वस्त्र पहने घूम रहे हैं और आप ये ध्वज दंड किसके लिए बना रहे हैं? देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। लल्ला, इंद्र की पूजा? हाँ। ये इंद्र हमारा क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप उनकी पूजा करते हैं? मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में गिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते। देवता नाराज हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। यह तो किसी व्यापारी के लक्षण है, भगवान के नहीं। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सबकी मृत्यु हो सकती है। ये मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित होता है। इसलिए किसी इंद्रमिंद्र में ऐसी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वो किसी प्राणी को मार सके बाबा। अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख, भोग, जन्म मरण, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। कोई इंद्र, कोई देवता हमारे कर्म फल को बदल नहीं सकता, इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चलेंगे। चलो।
चक्कर में ऐसे गुम हुए कि गांव की कुछ सुध ही नहीं ली कि पंचायत में क्या हो रहा है। क्यों, क्या हो रहा है? बरसाने वालों और गोकुल वालों में कोई फैसला ही नहीं हो रहा है कि होली कहाँ होगी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अच्छा, तो चलो अभी फैसला करा देते हैं। चलो। हाँ चलो। नंदराय जी, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं। इस बार भी होली गोकुल में ही होगी। रिजवान जी, आपने हमारी बात रख ली, इसका हम कैसे धन्यवाद करें। भाई, हम सारे गोकुल वाले आपका आभार मानते हैं। लो, हमारे आने से पहले ही निर्णय हो गया। अब तो आनंद ही आनंद है। अब तो सबको गोकुल आना ही पड़ेगा। अरे भाई, बरसाने की ग्वालिनों से डरते हो, इसीलिए तो निर्णय हुआ। ये बात तो सच है दादा। हम बरसाने की ग्वालिनों से सचमुच बहुत डरते हैं। काका, आप चिंता न कीजिए। बरसाने की ग्वालिन तो इनके घर में आकर भी गोकुल वालों को पीट सकती है। हाँ हाँ, देख लेंगे बरसाने वालियों को। और फिर हमें तो उनसे पिटकर भी आनंद ही आएगा।
बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध दो इनकी, चले गई ग्रह काज लोक लाज तज की। केश खुले बांधे नहीं, बसन संभारे नहीं, ध्यान कहाँ था कि वो जाती सज धज के। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। परंतु महाराज ने मेरे पुत्र को क्यों बुलवाया है? ये ना पूछिए नंदराय जी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी, और महाराज कि गाना किसका पुत्र है। परंतु मुझे महाराज पर भरोसा नहीं है। देखिए गुरु जी, हमने इस बालक को बचाने के लिए कई बालकों का बलिदान किया है, तो फिर उन बलिदानों का योगफल क्या यही निकला जब कान्हा को महाराज के पास भेज दें? मेरा कान्हा महाराज की गैया नहीं है कि वो जब चाहे तब उसे मथुरा हकवा दे। यदि आप ये चाहते हो कि मथुरा से सेना आकर सारे नंदगांव का सर्वनाश कर दे, तो मुझे कुछ और नहीं कहना है नंदराय जी। आप फिर ये भी तो सोचिए कि जिसने गोवर्धन को उठा लिया उसकी हत्या भला कौन कर सकता है। ताऊ जी, आयुष्मान भव। लल्ला, ये तुम्हें मथुरा ले जाना है। सुना है कि मथुरा नगरी रावण की लंका से भी अधिक सुंदर और मनमोहक है। लल्ला, अब अक्रूर जी ने रावण की लंका तो देखी नहीं, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? तब तो चलना चाहिए ना। हाँ, देना तो पड़ेगा ही। मैं तो नहीं जाने दूंगी। भैया 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 मत करे लल्ला, मैं तो तुझे कभी मथुरा नहीं जाने दूंगी। जियो ना लल्ला, जियो ना लल्ला, रुख से मोड़ के भैया की आंचल की छैया को छोड़ के, जियो ना लल्ला। भैया को दौड़ के, जियो ना लल्ला, जियो ना लल्ला, रुख से मोड़ के भैया की आंचल की छैया को छोड़ के, जियो ना लल्ला। कैसी मधुर सुगंध आ रही है। दाऊ भैया,
ये सुगंध कहां से आ रही है? सुगंध? यहां तो सुगंध वाली कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। हाँ, केवल वो एक कुबड़ी आ रही है। हो सकता है उसी के पास से ये सुगंध आ रही हो। उस कुबड़ी के पास से? हाँ हाँ, एक कुबड़ी के पास भी सुगंध हो सकती है। अच्छा, चलो दिखाता हूँ। चलो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी? तुम क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो। एक कोमल शरीर, कुरूप मुख, तुम्हें सुंदर लगता है? हाँ देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूँ, इसलिए तुम सुंदरी कहा मैंने। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती। ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं। तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी, हमारा विश्वास करो सुंदरी। तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखाते हैं। ये क्या कर रहे हो? बोलो, क्या चाहिए? प्रभु, अब तुम्हारे सिवा मुझे क्या चाहना है? तुमने स्वयं ही तो मेरे मन में ये भावना जगाई थी कि तुम मेरी कुटिया में और मैं अपने हाथों से तुम्हारे अंग अंग को अपने अंग राग की कला से सुभाषित कर दूं। बस उसी संकल्प को पूरा कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा ये संकल्प स्वीकार है। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हें एक दिन इस सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे।
क्या कल इसी का यज्ञ होगा? ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक से छूकर देख ली। तनिक से उठाकर देखी। इसे उठाओगे तो चेष्टा करता हूं बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं। अच्छा, प्रयास करो। ये बालक श्री धनुष उठाएगा। ये क्या उठाएगा? आज्ञा है प्रभु। याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं, परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहाँ आने का न्योता भेजा था और फिर
मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था, जिसमें लिखा था कि मथुरा में हमारा स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, ये उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है। क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राजमर्यादा का पूर्ण ज्ञान नहीं है। नहीं राजन, हमें राजमर्यादा का भी ज्ञान है और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तीदार आपको भेंट करने के लिए लाए हैं। इसे स्वीकार करें राजन। इसे कहते हैं वीरता। इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने थे वो झूठ नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा एक परमवीर बालक भी है। इसीलिए हमने मथुरा के इस महान उत्सव में आने के लिए तुम्हें निमंत्रण भेजा था, ताकि देश विदेश से आए हुए इन योद्धाओं, वीरों और मथुरा की प्रजा के सामने तुम्हें परमवीर पदवी प्रदान करके तुम्हारा राजकीय सम्मान किया जाए। परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं, और यहां बैठे हुए सभी लोग अवश्य चाहते होंगे, कि जिसकी वीरता के इतने चर्चे अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन आंखों से भी देखा जाए। इसीलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी पहलवान बुलवाए हैं। हम चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्ल युद्ध देखा जाए। इनमें से चाहे जिसे तुम चुन लो और उसके साथ कुश्ती करके जनता का मनोरंजन करो। हे मल्ल शिरोमणि, हम मानते हैं कि मल्ल युद्ध की चुनौती मिलने पर एक वीर को अपनी ताल ठोक कर अखाड़े में आ जाना चाहिए, परंतु मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। पहला तो यही है कि मल्ल युद्ध हमेशा दो बराबर वालों में होता है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? हम एक छोटे से बालक हैं और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं। आपकी विशाल काय के सामने तो हमारा शरीर एक चौथाई भी नहीं है। इसलिए आपकी और हमारी इस प्रतियोगिता को यहां पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। हम मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें, परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं।
क्या तुम्हारी
Then our Walas, Shatul Arjun Wadkar, Anya Farkiwala, Srijit Panikar. Then our Khans by Rajan Vasudevan. Pehlwans played by Rohit Agarwal, Pradeep Barot. Abbas Badani as Kans guard. Jiten Patel as jail guard. Our Dapliwala Anurag Mehta. And Walas and Gopis with him, Mahendra Mehta, Arun Gupta, Sudhir Khemka, Jyoti Pisipati, Usha Ignani, Neeta Daulat. Now let's call our team cast. Adult Krishna by Jasmine Patel. Devki and Radha by Aparna Gadekar. Atal Balram by Tejal Thanki. And finally playing the role of Pudna and our producer and director of this amazing show, Shri Krishna Leela, Chandra Mehta. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं